Periods are natural, conversation around them should be too. This Menstrual Hygiene Day, Radio City and Team Alembic, the makers of Krina NCR, invite you to join an open discussion on menstrual health, hygiene, and understanding your body better. Hello and welcome to the Period Talk with Expert. Today we will talk about a woman health and because understanding your body should never be uncomfortable. Hi everyone, my name is Tanu Gupta and I will be the host today. Yet this is still surrounded by hesitation, silent and myths. आज हम बात करने वाले एक ऐसे important topic के बारे में जहां हम जानेंगे कि normal periods क्या होते हैं, heavy bleedings क्या होती हैं and हमें डॉक्टर से कब advice लेनी चाहिए. So some common gynecological concern that should never be ignored. Joining us today, Dr. Rupa, a practicing gynecologist with the years of experience. Hi ma'am, welcome to the show. Thank you very much for having me here. And yes, indeed, it's a very important topic because periods, menstruation, there's a lot of beliefs, myths which is surrounding it. And I think having a proper knowledge, correct understanding is something which is very good and very important in today's age. And एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको ये डाउट है कि व्हाट आर द नॉर्मल पीरियड्स. True. So that's one of the basic questions जो हमें पता होना चाहिए. So normal periods हम जब नॉर्मल आई थिंक जब मदर्स अपने बच्चों को पास करती हैं सबसे पहले आई थिंक ये सिखाती हैं कि हर मंथ में आपको एक पीरियड होना चाहिए. सो मंथ तो एक मिथ है कि 30 डेज में पीरियड्स आना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. तो नॉर्मल पीरियड्स जब हम बोलते हैं तो उसको 2 दिन से 7 डेज लाइक 2 डेज भी हो सकता है किसी का पीरियड्स और 7 डेज तक पीरियड्स भी हो सकता है. दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल. दैट इज वेरी नॉर्मल. That is very normal. And then to start from 23 days to 35 days. So अगर आप एक 28 days हम लोग अपने मेडिकल साइंस में 28 days को आइडियल मानते हैं. आइडियल में तो बहुत ही कम लोग आएंगे लेकिन 28 days से 7 days प्लस भी हो सकता है, 7 days माइनस भी हो सकता है. So that is 23 days to 35 considered as normal period. So आप यूजुअली पीरियड्स कब शुरू होने हैं कब बंद होने हैं ये सब आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है. So what your mother had, what your grandmother had, it is kind of related to that also. तो अब हम नेक्स्ट हाइजीन की बात पे आते हैं. व्हाट आर द बेसिक हाइजीन दैट वुमेन शुड फॉलो, द गर्ल्स शुड फॉलो? So periods, number one, जो I will say is periods को normal consider करना है. That is something which our body, जो हमारी like as a woman, as a girl, हमारी body में already it is imbibed. It's like a gift just given to us, and there is nothing to be ashamed or scared about it. That is the first thing. When you talk, जब hygiene की बात करते हैं तो different people, अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है? Because obviously you have a blood flow, so आपको blood flow कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. So कभी आप pads यूज़ करते हैं, कुछ लोग tampons यूज़ करते हैं, कुछ लोग menstrual cup यूज़ करते हैं. So whatever be, जो भी आपका मोड है, at the end of it, उसका चेंज करना, उसको डिस्पोज करना, दैट इज़ द फर्स्ट हाइजीन जो आपको पता होना चाहिए. सो अगर आप एक लड़की हैं जो या औरत हैं जो पैड्स यूज़ करती हैं, सो मे बी अराउंड 4 to 6 आवर्स में आपको अपना पैड चेंज करना चाहिए. बट देन डिपेंड करता है कंफर्ट पे. कई लोगों को फर्स्ट 2 days कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, सो मे बी उनको शायद थोड़ा जल्दी चेंज करना पड़े, बट अदरवाइज 4 to 6 आवर्स इज इनफ. सेम थिंग्स अगर आप टैम्पून भी यूज़ करते हैं तो टैम्पून्स को भी आपको अराउंड 8 आवर्स में आपको चेंज करना. 6 to 8 आवर्स में यू हैव टू चेंज योर टैम्पून्स. मेंस्ट्रुअल कप आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग उसको यूज ब्रांडिंग वर्ड है ये, मेंस्ट्रुअल कप एंड टैम्पॉन्स. यस. So menstrual cup is also like a tampon, but menstrual cup is a reusable thing. Tampons को आप reuse नहीं कर सकते हैं. So menstrual cup जो लोग use करते हैं तो उसमें cups का size होता है. So depending upon the cup का size आपको उसको मतलब fill होने से पहले you have to change it. So आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है जो menstrual blood होता है उसको dispose करना है normal toilet में, and then flush the toilet and then just clean it and reinsert it. So once you आपका जब cloth soak हो गया है आप उसको निकालेंगे, clean करेंगे and उसको proper sunlight में dry करेंगे before reusing it. That's the only way. That's the best way to do it. जब बात हो रही है हाइजीन की तो नॉर्मली लोग पहले से अवेयर हैं. व्हाट डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ का क्या रिप्लाई होगा? क्योंकि मैं ये जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग थोड़ा सा ज़्यादा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, पीपल आर मच मोर अवेयर विद दिस. तो हर जगह पे स्कूल्स लेवल्स पे या कॉलेजेस में या मे बी इवन इन योर वर्क प्लेसेस मेंस्ट्रुएशन अभी एक टाबू नहीं रहा है. ठीक है, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट.
There are so many people who make menstrual kits etc. just to give so that you feel comfortable during that time. So And yes. अभी एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया है कि बच्चों को इस मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलानी है स्कूल्स में, तो क्या होगा इससे कि मतलब अवेयरनेस रहेगी बच्चों के लिए? Actually that was a very very good and important step जो Supreme Court ने लिया. So Article 21, if we understand very simple words में, the right to life and dignity. So basically dignity is how I want to live my life. Like I've been in not just live my life, it's how I can बिना किसी शर्म के मैं अपनी जिंदगी को कैसे बिता सकती हूँ. That is dignity. And as a woman, I don't think so having periods or going through periods or anything जो periods के साथ associated है, चाहे वो pain हो, चाहे वो heavy menstrual bleeding हो, चाहे वो कोई sports हो, कोई activity हो, मुझे उसमें कोई भी hindrance लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. डॉक्टर, जैसे बहुत सारी लेडीज हैं जो कि आजकल ट्रैवल कर रही है पीरियड्स के टाइम पे, ट्रैवल करती है, योगा करती है, जिम जाते हैं, तो क्या ये सारी चीजें सेफ है? Very much. हर चीज. I don't think so. There is any activity जिसको हम no बोलते हैं during periods. आपने योगा और traveling के लिए बोला. There are people जो hike करते हैं. There are people who swim during periods. Okay, and it's absolutely safe and it's absolutely recommended also. Just that they should know कि करना कैसे है. Okay, so it's a big myth. ऐसा लगता है कि अब आप स्विमिंग पूल में उतरेंगे तो डेफिनेटली यू हैविंग योर पीरियड्स तो पूरा स्विमिंग पूल ही ब्लड से ना पड़ जाए. ऐसा कुछ नहीं होता है यूजुअली. सो अगर किसी को समझना है और कैसे करना है, डेफिनेटली दे कैन कम एंड टेक अ डॉक्टर्स सजेशन अबाउट इट, बट देयर इज नो एक्टिविटी दैट यू हैव टू स्टॉप. क्या नॉर्मल एक्सरसाइज पेन को और क्रैम्प्स को कम करते हैं? Yes, actually having a good healthy lifestyle, not just activity but just normal basic exercises, your food, your diet, ये सब बहुत important होता है एक नॉर्मल पीरियड के हर जो साइड इफेक्ट्स जिसको कहते हैं हम लोग उसको कवर करने के लिए. So if you have a good active life जिसमें exercises है and basic yoga and all is covered, I think you will be able to tolerate the pain much better compared to somebody जो नहीं करता है. तो गाइस, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. डॉक्टर, लोग जनरली आजकल पीरियड्स को न्यूट्रिशन से कनेक्ट नहीं करते हैं. सो डाइट का डेफिनेटली ह्यूज मेजर रोल होता है, क्योंकि जस्ट नॉट पीरियड्स के टाइम पे बट एवरी डे. सो इफ यू कंसिडर पीरियड ऑल्सो एज अ नॉर्मल एक्टिविटी, एज अ नॉर्मल लाइफ का प्रोसेस कवर करेंगे, सो उसमें भी उतना ही बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है. बट देन एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है. वॉट एवर सेड और डन, आपके पीरियड्स के टाइम पे आपको ब्लड लॉस, तो ब्लड को कवर करने के लिए या रिकवर करने के लिए, और इफ यू डू नॉट हैव अ हेल्दी डाइट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक अप. सो वो हेल्दी डाइट लेके आने के लिए हाई आयरन डाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आयरन क्वांटिटी ज़्यादा है. डेफिनेटली अगर आयरन ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड जो बॉडी में ब्लड की मात्रा है वो भी बेटर होगी. और अगर बॉडी में ब्लड की मात्रा बेटर है, ओके, देन आपको जो एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमारे अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो आयरन ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो भी बेटर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सर्कुलेशन भी बेटर होगा. सो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे यू फील टायर्ड ड्यूरिंग योर पीरियड्स, एक्स्ट्रा टायर्ड, मोस्टली गर्ल्स फील एक्स्ट्रा टायर्ड, दे फील स्लीपी ड्यूरिंग योर पीरियड्स, दे डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, ठीक है, ये सब इंटर रिलेटेड है. सो अगर डाइट अच्छा नहीं होगा तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ज़्यादा. So guys, as you can see, डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, नॉट ओनली इन पीरियड्स, अ डेली लाइफस्टाइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. डॉक्टर, मेनी वुमेन फील्स वेरी टायर्ड ड्यूरिंग पीरियड्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको ऐसा लगता भी नहीं है, ऐसा लगता है कि दीज आर द नॉर्मल डेट्स. व्हाट डू यू वांटेड टू से अबाउट दिस? आई थिंक अगेन इट्स टू डू विथ आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी में जो चेंजेस हैं, नॉट जस्ट ड्यूरिंग पीरियड्स, इज बिफोर दैट ऑल्सो. So let's say अगर आपके पास ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम है, so it will be very difficult for you. आप एक एवरेज हीमोग्लोबिन में भी 8 और 9 ग्राम्स तक घूम रहे हैं, तो जस्ट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑब्वियसली थोड़ा ब्लड लॉस जब होगा तो you will feel more tired about it. So you are somebody who's not very active, who's already having a very I think lazy is not a right word, but maybe a very inactive lifestyle जिसमें कोई exercise नहीं है, just a sitting job है. So there is no body movement per se, right? So you're going to feel very tired about again during periods, okay, because periods के बीच में भी कुछ hormones होते हैं जो actually body को tired करने like they
बॉडी को टाइट तो नहीं करेंगे, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू से, बट डेफिनेटली जो हार्मोन लेवल्स की वजह से भी ये हल्का माइल्ड टाइटनेस आता है, ठीक है। सो नेचुरल जो बॉडी में चेंजेस है वो तो चेंज नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, विच इज गेटिंग इन टू बी मोर एक्टिव, ठीक है, आपने हेल्थी फूड या हेल्थी चॉइसेस को रखेंगे, ठीक है, मे बी सम इंक्लूड सम एक्सरसाइजेस, जस्ट सिंपल थिंग्स लाइक वॉकिंग और dancing, something like that, or it's people who swim, they include that in their lifestyle, okay, if you do all of that, and plus your food that we talked about, no, yeah, all that when you include together, I don't think so you need to do anything extra for it. अगर फिर भी आपको लगता है, yeah, maybe then you can get yourself evaluated for certain smaller conditions like thyroid, और कितना blood level है आपने, और अगर उसमें कोई changes पाई जाती हैं तो then consult your doctor and then maybe you can start on a medication. Anything which is natural is absolutely safe. So अगर आप again you go into the social media, it's flooded with things from hot water bottles to backpacks and heating pads and आजकल तो there are stick-on pads also which come to take care of all these pains. So usually अगर मेरे से कोई इसके लिए एडवाइस लेने आता है तो आई टेल देम दैट एनीथिंग व्हिच इज एक्सटर्नल एंड व्हिच डज नॉट अफेक्ट यू, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट अगेन इट्स टू डू विद योर टॉलरेंस लेवल. In a social media, we see a belt. Yeah. So this is quite effective. सी अल्टीमेटली उसमें करना इतना है कि आप एक हीट सेंसेशन दे, तो आप हॉट वाटर बॉटल लगाएं या हीटिंग पैड लगाएं या हीट स्टिक ऑन लगाएं, ओके, एट द एंड ऑफ द डे इट इज गिविंग यू हीट, ओके, द हीट इज नॉट डायरेक्टली वो यूट्रस के अंदर जाके कुछ कर तो नहीं रहा है, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग, बट इट गिव्स यू अ सूदिंग. Like अगर आपको एक बैक पेन है और अगर somebody just gives you a little small massage and with the heat which is there, okay, या आप एक हल्का hot fermentation ले लेते हैं, तो what happens during that time? वहाँ से कोई पेन तो निकल के तो नहीं जाता, but you are getting the muscles kind of get smooth, like आपको थोड़ा सा relief मिलता है. So that is what it is. Okay, so जो next question है, ये सब लोगों का बहुत common concern होता है कि कभी-कभी लोगों को बहुत ज़्यादा heavy bleeding होती है, तो is this normal? आई थिंक मैंने जब फर्स्ट पीरियड्स के बारे में बताया था उस टाइम पे आई टोल्ड यू कि पीरियड्स का भी रेंज होता है, सो फ्रॉम 2 days to 7 days. अभी नॉर्मल पीरियड्स में व्हाट वी से इज अराउंड 80 ml ऑफ ब्लड इज समथिंग जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं. सो अगर उससे ज़्यादा क्रॉस करता है तो उसको लिटिल हैवी पीरियड्स या एक्सट्रीमली हैवी पीरियड्स बोला जा सकता है. लेकिन अगर एक इंसान को नॉर्मल सिंपल टर्म्स में समझना है कि हैवी पीरियड्स क्या होते हैं, तो अगर उसके पीरियड में बहुत सारे क्लॉट्स, लाइक इन सेंस कि ब्लड जो कलेक्ट होके एक साथ निकलता है, छोटे क्लॉट्स निकलना दैट इज नॉर्मल. ब्लड कभी भी कलेक्ट होगा वो क्लॉट्स के रूप में निकलेगा. वी डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड अबाउट दैट, उससे डरने की जरूरत नहीं है. कभी आप समटाइम्स आप सो के उठते हैं, बहुत बार लोग आते हैं कि मैं सो रही थी तब नहीं हो रहा था और एकदम से उठी तो ब्लीडिंग. दिस इज द कॉमन. या सो दैट इज नॉट, आई डोंट थिंक सो इसके लिए हमें डरने की जरूरत है. As long as you know कि when you आपका नॉर्मल जो एक्टिविटी जब आप चल रहे हैं तब ज़्यादा नहीं आ रहा, तो समटाइम्स when you are not moving around तब ब्लड कलेक्ट होके एक जगह पे चला जाता है, एंड देन व्हेन यू गेट अप सडनली यू पास. सो अगर बहुत हैवी फ्लो अगर हमको देखना है तो या तो यू आर चेंजिंग मोर देन 6 to 7 pads, more than 10 pads a day, अगर आप चेंज कर रहे हो दैट इज कंसिडर्ड एज हैवी ब्लीडिंग. और एल्स ये जो क्लॉट्स हम बोल रहे हैं, ठीक है, यू आर जस्ट पासिंग क्लॉट्स एंड ह्यूज क्लॉट्स लाइक मे बी अराउंड 50 ग्राम क्लॉट्स अगर आप पास करते जा रहे हैं तो उसको हैवी ब्लीडिंग कंसिडर करते हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली एक बार जाके, अगर कभी कभी ये फर्स्ट डे में ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, सेकेंड में होती है, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ यू गेट, दैट इज ऑल्सो considered normal. But if it's continuously happening and if it's going more than 7 days and you're changing more than 10 pads or 7 to 10 pads, then you should definitely go to a doctor. कुछ लोग पिल्स की बात आई है, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा पेन अगर आ रहा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पिल्स ले लेते हैं, तो लाइक नॉर्मल जो पिल्स होती हैं पेट दर्द और हाथ पेट दर्द और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो कुछ लोग ऐसी पिल्स ले लेते हैं, तो इज दिस सेफ? फर्स्ट लाइन हमेशा पीरियड्स के बीच में होगा टू यूज नेचुरल मेथड्स, लाइक वी सेड, टू हैव गुड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, मतलब आपका पानी का कंटेंट कम नहीं होना चाहिए, आपका फूड डाइट प्रॉपर होना चाहिए, गुड डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज थोड़ा होना चाहिए, हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं. अगर ये सब करने के बावजूद, मतलब आपने अपनी स्टैमिना भी इंक्रीज किया, येट यू आर हैविंग क्रैम्प्स, आप जस्ट माइल्ड पेन किलर्स आप ले सकते हैं. But apart from the periods, what are the common gynecological symptoms that women should not ignore? And what do you think? Daily checkups are important? Not daily, but definitely
going to a doctor for at least getting yourself checked is something important. Most of the time हम लोग देखते हैं वो ये है कि most of the women, especially सिटीज़ में फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस होता है, लेकिन विलेजेस में बहुत इंटेंस होता है, मतलब बहुत शर्माते हैं लोग कि क्यों आएंगे, मतलब जब तक उनको प्रॉब्लम पूरी नहीं हो जाती तब तक वो लोग नहीं आते हैं. एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर नॉन डिटेक्शन ऑफ इवन कैंसर्स इन वुमेन. चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे हम, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे, सो लोग पहुँच ही नहीं पाते. एक चेकअप करवा लेने में कोई गलती नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है. दैट इज़ वन थिंग, and you should not hesitate for that. That is one thing. The second thing is simple things like if you're really feeling discomfort with something, you go and clear it out. आप पहले पूछ लीजिए कि it doesn't have to be always, you don't always have to Google and see. आजकल Google करके सब लोग देखते हैं. So you can go to a person and ask for help, including contraception. People उसके लिए भी नहीं आते, normal family planning advice लेने तक नहीं आते हैं. ठीक है, you will end up taking abortion pills. You can do so many things, but you will not come and take advice for family planning. So you should go to a doctor for those kind of advices. But simple things like discharge होना या foul smelling discharge, मतलब आप स्मेल आता है डिस्चार्ज में, या फिर ब्लीडिंग होना, या फिर हैवी ब्लीडिंग होना, या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, अगेन वेट गेन लाइक एक्ने एंड हिर्सुटिज्म. आई थिंक आजकल लोग आ ही जाते हैं बिकॉज आई थिंक दे आर यंगर जनरेशन. दैट्स व्हाई एल्डर जनरेशन में यही इन्हीं चीज़ों में. बट एट द आफ्टर वन थिंग आई वुड ऐड इज after the age of 35, आजकल तो 35 भी कट ऑफ चला गया है, maybe after you've had 1 or 2 kids, just as a routine, you should get yourself screened for simple normal cancers and things like that. चाहे वो breast के लिए evaluation हो या फिर cancer evaluation हो, you should just very very simple tests. इसमें कोई hesitancy नहीं है. Just go to a doctor, get those tests done, and you can be aware of yourself. I think that's what I would say. And what do you think about awareness? हमने बात की है अभी, तो पहले से ज़्यादा अभी लोग अवेयर हुए थे इन चीज़ों को लेकर के. डेफिनेटली एजुकेशन वन रूट. स्कूल्स में वी गो एंड गिव टीचिंग. हम लोग खुद भी जाते हैं ये अवेयरनेस टॉक्स देने के लिए. एडोलसेंट एज ग्रुप्स में वी टेक क्लासेस इन बिटवीन. सो जो हमारे जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आवर हॉस्पिटल इटसेल्फ हैज कम्युनिटी ब्रांचेस होते हैं हमारे, जिसमें मेन फोकस यही होता है टू गेट पीपल इक्विप्ड टू नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, सिंपल मेडिकल नॉलेज. तो उसमें लाइक एडोलसेंट एज ग्रुप में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं. आजकल का एक एक्स्ट्रा फोकस हो गया है HPV वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन. दैट इज समथिंग दैट वी हैव बीन लाइक encouraging young girls to take. So that is also something which is there as a preventive measure. By middle age and post middle, मतलब periods खत्म होने वाले एज में जो जन वुमेन की बात करेंगे उनके लिए like I said, all the cancer screenings and yearly checkup for the same. ठीक है, that is something very very simple, 5-minute 10-minute job, but I think they should get it as a preventive part. Let's do a rapid fire round. क्या वुमेन्स को पीरियड्स के टाइम पे बात लेनी चाहिए, नहाना चाहिए? Of course, they should keep your themselves clean. Daily? Yeah, maybe twice a day if you want to. You have to keep yourself clean. There is nothing else. There is no restriction. Okay. Periods openly is inappropriate? Not at all. I think you should talk openly about your periods, and that is when अगर एक लड़की दूसरी लड़की से या जिसको पता है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेगी, how will she know what is normal and what is abnormal? So I encourage everyone to openly ask instead of going into just myths and just following certain things. You should clear your doubts, and you should know and learn what is right rather than just making. Before we wrap up this podcast, what is the one message, कोई भी एक ऐसा मैसेज जो कि आप हमारे listeners, viewers को देना चाहते हैं? One thing if I want any one of you to take from this whole discussion today is that I think our body speaks to us and we should never hesitate to take help. So छोटी से छोटी चीज़ होगी, शायद सामने वाले आपको लगे कि ये कैसे पूछूं, आपको hesitancy लगे, but I don't think so you should do that. And just because किसी ने बताया है उसको एक myth समझ के या उसको word समझ के उसको accept करने से पहले, anything for your life, it's always better to take a consultation. It's always, if it is a medical problem, definitely it's always better to take a consultation. Don't Google your symptoms and reach a conclusion कि हर symptom का end cancer में end होता है. That is not required. So the world is full of opportunities, and if there is something restricting you,
from taking those opportunities, and if your body is having a problem by any means, I think you should never hesitate to go and ask for help. Thank you so much, doctor. Such an informative knowledge which you shared right now. Thank you so much once again. To all our listeners, thank you so much for listening us. And your health matters, your question matters. This is what we are discussing about menstrual hygiene. And बने रहिए हमारे साथ रेडियो सिटी में. Stay informed, stay happy, stay good.